Hello children, welcome again in part 2. Children, in part 1 we have discussed about fats, carbohydrate, and in this part we will discuss about minerals, vitamins, water and roughage, which are known as the component of food. Children, you have learned in part 1 that fats is a very essential component which are known as the most energetic component, and also we have discussed that fats are classified into saturated, unsaturated, plants and animals fats. And in this part we will discuss about minerals, vitamins, water and roughage. Minerals. What is a minerals? Minerals are known as the component of food. And minerals are inorganic. They are inorganic matter. They are useful for different mechanisms. Different mechanisms. They participate in tissue, bones, blood. Minerals are participates in tissues, bones, blood, and they are inorganic substance, and there are many types of minerals which are very essential for completing the all metabolism action which take place inside the body, inside the cell. शरीर में जितने भी फॉर्मेशनिंग होने वाले जो फंक्शन होते हैं और डिस्ट्रॉइंग होने वाले जो भी फंक्शन होते हैं वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म एक्शन पे, यानी कि द कम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग एंड कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेशन, जितना बनता है उतना डिस्ट्रॉइंग होते हैं. ये कंटिन्यू ये काम चलते रहते हैं हमारी बॉडी में, एक तरह बनना और फिर उसका टूटना, उसका ख़त्म होना. और it is very essential, it is also very important. Formation are essential like destroying. Okay, जिस तरह से बनता है वो डिस्ट्रॉय होता है, उतने ही उसका बनना भी ज़रूरी है और उसका डिस्ट्रॉय होना भी, नष्ट होना भी ज़रूरी है. तो मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. ये टिश्यू, बोन्स और ब्लड में पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को भी ये क्या करते हैं? कैरीज करते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट सम मिनरल्स. एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन. यू नो अबाउट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन. सोडियम, ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस इम्पल्स. इट मीन्स यू नो दैट इफ आप जानते हो कि यदि हमें किसी हैंड में या पैर में कहीं भी हमें पेन होता है तो उसका फील हम बहुत जल्दी कर लेते हैं. क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारे ऑल बॉडी पार्ट में नर्वस सिस्टम जो है, नर्व सिस्टम वो स्प्रेड हुए हैं, फैले हुए हैं, जिसके थ्रू वो इम्पल्स को, उस सूचना को टेकअप करके हमारे ब्रेन को देता है. तब इसे रियलाइज होते हैं, महसूस होता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है. तो किसके थ्रू? नर्व इम्पल्स के थ्रू, आवेग के थ्रू ट्रांसमिशन होते हैं वन जगह से दूसरी जगह तक. आपको हाथ में दर्द होता है, आपको महसूस होता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपका जो नर्व इम्पल्सेस है वो ट्रांसमिट हो चुका है आपके ब्रेन तक, और फिर वहाँ से फिर रिटर्न होकर आता है कि नहीं, यहीं मुझे दर्द हो रहा है. सो सोडियम हेल्प्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. उस आवेग को, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस. सो दे आर caused
due to minerals. Which minerals? Sodium minerals. They are found salt, fish, egg, milk and meat. It means they are found salt, meat, fish, eggs, milk and meat. They are provide sodium. They are provide the some nutrients, and also known as deficiency of minerals, known as the some deficiency diseases such as vomiting, muscle cramp, nausea. मसल्स क्रैम्प मतलब मसल्स में क्रैम्प होना, दर्द होना, पेन होना. न्यूएशिया यानी कि जैसे कि वोमिटिंग की तरह जो होता है, जी मचला जाता है कि मुझे वोमिटिंग की तरह लग रहा है, तो न्यूएशिया, वोमिटिंग एंड आल्सो वी से दैट न्यूएशिया, वोमिटिंग एंड मसल्स क्रैम्प्स, deficiency of these minerals. Which minerals? Sodium. Now we'll discuss about potassium minerals. Potassium also helps to transmission of nerve impulses, and there are some other functions also, but mainly they also help to the transmission of nerve impulses from one place to another places. And like the upper deficiency disease, nausea, vomiting, can take place during the deficiency of potassium minerals. And calcium provides rigidity of bones and teeth. Calcium provides rigidity of bones and teeth, and the lack of calcium, children suffers, जो छोटे बच्चे होते हैं children, they suffers a disease rickets, and in adult they suffers osteomalacia. And इस वर्ड को मैंने पहले भी यूज किया है पार्ट 1 में, osteomalacia. Okay, now we'll discuss about iron. They are also called minerals. Irons, it means Fe. They control the amount of hemoglobin into blood. They control the amount of RBC, red blood corpuscles या cell. Okay, then iron controls the hemoglobin RBC into the blood, and due to the lack of iron we suffer a disease anemia. Okay, now we'll discuss about vitamins. Vitamins are needs in very small quantity. बहुत कम मात्रा में इसका यूज होते हैं, बट दे आर वेरी एसेंशियल. एंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विटामिन हमारे शरीर में बनता नहीं है, बल्कि इसको किसी फूड मटेरियल से ऑब्टेन करना पड़ता है. विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी हमारे बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको किसी न किसी फूड के तौर पे इसका यूज़ करते हैं, जैसे फूड मटेरियल्स, न्यू कंपोनेंट ऑफ द फूड के तौर पे. तो विटामिन्स भी हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए वेरी एसेंशियल, एंड they needs in very small quantity to the cell. And vitamins are classified into two forms: soluble fats and soluble water. Some vitamins are soluble into the fats, and some vitamins not soluble into the fat, they are soluble into the only water. कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट्स में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ विटामिन्स ऐसे भी होते हैं जो फैट्स में नहीं घुलते हैं. वो किस में घुलते हैं? वाटर में घुलते हैं. ओके, तो एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से फैट्स सोल्यूबल हैं, कौन कौन से विटामिन फैट में सोल्यूबल हैं, कौन से विटामिन वाटर में सोल्यूबल हैं. तो A, D, E, K. विटामिन ए बिकॉज दे अरेंज इन हु अरेंज विटामिन अरेंज इन अल्फाबेटिकली नंबर A, D, B. ये नहीं मैं कहूँगा कि ABCD का पूरा अक्षर इसमें कंक्लूडिंग कर दीजिए, लेकिन A, D, E, K, B, C स्पेशली फॉर्म्स ऑफ विटामिन. एंड चिल्ड्रेन इन 1911 to 19, कहीं कहीं आपको 1911 मिलेगा और कहीं आपको 1912 मिलेगा. फंक थे एक, सी फंक, साइंटिस्ट का नाम है. सी फंक ने 1911 से 1912, 1911 भी कहीं देता है, 1912, तो मैक्सिमम आप इसको 1911 मान के चलिएगा, 1911 मान के चलिएगा.
मैक्सिमम जगह पे आपको यही दिखाई देगा, यही मिलेगा 1911। सो हम इसी को सही मान के चलेंगे। 1911 in 1911 C-Funk discovered at first C-Funk 1911 in 1911 C-Funk saw vitamins at first, okay, and they are classified into two forms, soluble and insoluble, A, D, E, K and B, C. Now मैंने यहाँ पे कुछ विटामिन, उसके केमिकल नेम और उससे होने वाले डिजीज को यहाँ डिफाइन किया है, और आप इसको अच्छे से देख कर इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा, ओके। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो चार है ना, ये किसमें सॉल्यूबल होते हैं? फैट्स में। ये होने वाले हैं फैट्स में सॉल्यूबल। एंड ए विटामिन, द केमिकल नेम ऑफ ए विटामिन ए, रेटिनॉल। Retinol is the chemical name of vitamin A, and deficiency of vitamin A, night blindness। और ये पाए कहाँ जाते हैं? पके हुए फल में, येलो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल is the chemical name of vitamin D। Deficiency of vitamin D disease carry rickets and osteomalacia, same disease, and they vitamin D helps for combine to calcium। ये इसके साथ मदद मिलके दोनों काम करते हैं साथ में, ओके। विटामिन ई, द टोकोफेरल known as the chemical name of vitamin A। विटामिन ए, रेटिनॉल, what? रेटिनॉल। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टोकोफेरल। and due to the lack of vitamin A, abortion, it means the reproductive power is less, it means known as the abortion, okay children। And vitamin K, the chemical name of vitamin K, piloquilone, and due to the lack of vitamin K, delayed clotting of blood। And B1, this is a complex vitamins, and the types of B are the following, such as vitamin B are classified into many forms: B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12। At first B1, and B1, the chemical name of B1 known as the thiamine, and the lack of B1 disease carry beriberi। And B2, the chemical name of B2 is riboflavin, and due to the lack of riboflavin, we suffers from क्रैकिंग ऑफ माउथ एंड स्किन। आप देखते होंगे कि कभी कभी स्किन फट जाते हैं, माउथ के साइड में जो भी क्रैकिंग कॉर्नर होते हैं, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। और ये आपको ग्रीनी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, जितने भी आपको अनाज के दाने, जो भी होल ग्रेन्स आते हैं, सब में आपको मिलेगा। B3, द केमिकल नेम ऑफ B3 इज नियासिन, एंड due to niacin, a disease carry pellagra is a disease, children। pellagra is that type of disease in which आपको इसमें इसकी पहचान के लक्षण ये है कि कभी कभी स्किन पे बहुत सारे जो जैसे कि बटरफ्लाई जैसे होती हैं, उनके आकार का शरीर पे घाव की तरह, वाउंड की तरह हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, वोमिटिंग होता है, दस्त होने लगता है। तो इस तरह की कंडीशन B3 यानी नियासिन की कमी से होती है। और ग्रीनी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, मीट, मिल्क, ये सब आपको प्रोवाइड कराते हैं B3। B6, पायरिडॉक्सिन, इट मीन्स, देखिए B6, B7, B9 एंड B4, दिस इज अ वेरी सिमिलर, बट देयर केमिकल नेम इज डिफर फॉर ईच अदर। सो हम यहाँ पे अलग अलग किए हैं, लेकिन दोनों सबका जो फंक्शन है वो एक ही है। इन सभी के कमी से, जो लेकअप से सिर्फ एक ही डिजीज होता है, एनीमिया, लेक ऑफ
लेकिंग ऑफ ब्लड, यानी कि पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालेमिन is the chemical name of B6, B7, B9, B12 respectively, and due to this type of vitamins, the lack of this type of vitamins, disease carry anemia, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है और इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। एंड नाउ एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन सी, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी है सिर्फ दो ही विटामिन हैं जो आपको सॉल्युबल हैं वाटर में। तो विटामिन सी इज नोन एज स्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है स्कॉर्बिक एसिड, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल और ये कैल्सीफेरॉल। ओके, नाउ विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड एंड vitamin C, the lack of vitamin C carry a disease scurvy. Scurvy is a lack of vitamin C, और ये आपको विटामिन सी कहाँ मिलेंगे? सिट्रस फ्रूट में मिलेंगे। खट्टे फल जितने भी हों उसमें आपको विटामिन सी मिल जाएगा। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट वाटर। वाटर चिल्ड्रन, आप इसको अच्छे से देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के लिए नहीं आगे के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है और आपको काम देगा। सीरियसली इसको लीजिएगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट वाटर एंड रफेज। दिस इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ दिस लेसन। ओके, वाटर, यू नो अबाउट वाटर एंड रफेज। वाटर, it means H2O, and you know that water is formed the amount of combined to hydrogen and oxygen. Water help us in the various function such as transmission of oxygen and CO2 from blood and tissue, यानी कि जब हम हार्ट यानी टिश्यू से लंग्स से जब ऑक्सीजन और CO2 का जब ट्रांसमिशन होता है, जब एक्सचेंजेशन होते हैं, जब वो चेंज होते हैं तो किसके थ्रू होते हैं? वाटर के थ्रू होते हैं। ब्लड में जो वाटर है उसके थ्रू होते हैं। यदि वाटर ना हो तो दिस फंक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। नाउ विल डिस्कस अबाउट water helps in the process of digestion. Waters help in the all metabolism action, and water maintain the temperature of the body. And roughage is a very essential, like all of the components we have discussed. And roughage is that kinds of component which is also called fiber. Fiber, it means roughage, and roughage helps us to remove the extra which extra waste, not for extra exception. Extra means जो waste है हमारी बॉडी में, waste जो हार्मफुल है हमारे लिए, उस वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है रफेज, बिकॉज दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड सो दे हेल्प इन टू द रिमूव the waste products from our body and stored that part of body by which we remove time to time. ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह हम आज इसको पढ़े पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। और आप इसको जितना भी मैंने बताया अभी नीचे का केमिकल नेम, विटामिन जो कुछ सॉल्यूबल फैट्स थे, कुछ सॉल्यूबल वाटर थे, इस सबको आप ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। ओके, तो इस तरह से यदि कुछ डाउट हो तो आप फिर पूछिएगा हमसे, कमेंट में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।